Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर A.K. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रही हैं लालिमा अनीजा डैंग। Thank you, Sonu. Domestic stocks bounce back with a gain of more than 1%. Sensex closes above 35,500 level. Nifty ends at 10,735. Rupee appreciates 24 paise against the US dollar. And Brent crude prices ease to trade around $66 per barrel. घरेलू शेयर बाजार 1% से अधिक के उछाल से फिर तेजी में लौटे। सेंसेक्स 35,500 से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 10,735 पर पहुंचा। रुपया डॉलर के मुकाबले 24 पैसे की मजबूती में रहा और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य कम होकर $66 प्रति बैरल के करीब आया। शेयर बाजार से उत्साहजनक खबर। 9 सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 404 अंकों के उछाल में रहा। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता को लेकर वैश्विक बाजारों में आशावाद के बीच निवेशकों ने उन शेयरों की खरीदारी की जिनमें हाल में भारी गिरावट आई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 404 अंकों की भारी बढ़त से 35,756 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 131 अंकों की तेजी से 10,735 पर जा पहुंचा। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां भी तेजी का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.91% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.84% की बढ़त दर्ज हुई। Reversing a 9-session falling streak, the BSE Sensex today rebounded 404 points as investors snapped up recently hammered stocks amid optimism in global markets over the US-China trade talks. Sensex and Nifty both climbed more than 1%. Sensex at the Bombay Stock Exchange surged 404 points to trade at 35,756. Nifty at the National Stock Exchange also appreciated 131 points to trade at 10,735. Among secondary barometers, the BSE Mid-Cap Index rose 0.91% and Small Cap Index rose 0.84%. Market breadth indicating the overall health of the market was positive. On BSE, 1,496 shares rose and 1,110 shares fell. A total of 160 shares were unchanged. In the past 9 sessions, the Sensex had lost 1,623 points, while the Nifty cracked 465 points over 8 trading days. Metal, IT and banking counters chalked up smart gains on Wednesday, with Vedanta topping the Sensex winners list with a jump of 4.7%. Other gainers included Tata Steel, ONGC, NTPC, Yes Bank, Infosys, Sun Pharma, Bharti Airtel, SBI, Bajaj Finance, L&T and RIL rising up to 4.1%. On the other hand, Hero Motorcorp, HUL, M&M, Bajaj Auto and IndusInd Bank fell up to 0.6%. All the BSE sectoral indices finished in the green, led by metal around 3%, basic materials and oil and gas climbed 2.2%. So, Mr. Bhattacharya, how do you see this after a 9-session falling streak? We lost 1,623 points, but up 404 points. Well, you're right. It is just a recovery of 25%. So what you lost in 9 sessions, you have recovered only 25% of that in 1 session. So it's probably market is making good the losses that one saw in the last 9 sessions.
And I get the sense that probably it is reflecting also the relatively reduced tension between India and Pakistan. The market is probably recognizing that, yes, in the initial days, there was a bit of nervousness. I think I get a sense that probably markets are really taking it in their stride. And one has to wait for the full data, but my sense is that probably FIIs are also taking a fresh look at the current prices of the market, and probably by tomorrow we will know that to what extent FIIs came back into the market today. हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं श्री अविनाश गोरखशेखर, जो हैं बाजार विशेषज्ञ। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज जैसा भी हम डिस्कस कर रहे थे कि 9 दिन की गिरावट के बाद 1600 अंक से ज्यादा गिरा था बाजार। आज 400 अंकों से अधिक की हमने तेजी देखी है सेंसेक्स में, और ब्रॉडर मार्केट में भी तेजी है। सारे जो हमारे सेक्टर्स हैं वो भी बढ़त में रहे हैं। सो क्या लगता है आपको, ये जो पिछले 9 दिन हमने गिरावट देखी उसके क्या प्रमुख कारण थे, और अब आपको लगता है कि ये रिवर्सल है उस ट्रेंड का? कैसे देखें हम आज की तेजी को? मुझे लग रहा है कि 9 दिन की गिरावट के बाद मार्केट्स ने आज एक थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस दिया है। ज्यादातर शॉर्ट कवरिंग से हुआ है, और पॉसिबली थोड़ा सा सेंटिमेंट थोड़ा सा सुधरने के कारण हमको लग रहा है कि मार्केट्स में थोड़ी बहुत बढ़त आई है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में 11,800 या 11,850 तक मार्केट जाए, बट ओवरऑल हमको लग रहा है कि आप ऊपर का लेवल थोड़ा सा, इस लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से गिने चुने शेयर्स जो फाइनेंस सेक्टर के हैं, ऑयल एंड गैस के हैं, टिपिकली जो मेटल सेक्टर है जो गिरे हुए थे, वहां पे वो बाउंस आज देखने को मिला। तो बट ब्रॉडली मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी सेक्युलर ट्रेंड है, मार्केट्स आगे भी थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। लेकिन आपने अभी सेंटिमेंट इंप्रूव होने की बात कही, सो अभी आपको पॉजिटिव फैक्टर्स कौन से दिखाई देते हैं जो बाजार को रेंज बाउंड रखें? और जैसा हमने पिछले 9 दिनों में देखा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद बाजार जो ग्लोबल ट्रेंड है उसको डिफाई कर रहा है, क्योंकि बाकी जो बाजार है वो बढ़े हैं इस वर्ष में। 2019 में 10% से अधिक बढ़ा है यूएस का बाजार, 4 से 10% बढ़े हैं बाकी एशियाई बाजार। सो आपको लगता है कि भारत में ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, एक डाइवर्जेंस, उसके क्या कारण हो सकते हैं और आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? मुझे लग रहा है कि इन द नियर टर्म जो आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे जो रिकैपिटलाइजेशन का न्यूज आया है, उससे हो सकता है कि कल भी थोड़ी सी तेजी ओवरऑल प्राइवेट बैंकिंग और पीएसयू बैंकिंग में हमको देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल हमको लग रहा है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो अभी क्लोजली इलेक्शंस के न्यूज फ्लो को क्लोजली वॉच करेगा, क्योंकि यही एक इवेंट है जो अभी आगे मार्केट्स को एक प्रॉपर डायरेक्शनल कॉल देगा। नियर टर्म में तो मार्केट्स ऊपर नीचे रहेगा जब तक इलेक्शंस के तारीख मेरे ख्याल से मार्च के फर्स्ट वीक में जब अनाउंस होंगे, तब मार्केट्स थोड़ा सा वहां से एक आइदर यू टर्न या नीचे का लेवल जरूर दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इलेक्शन अनसर्टेनिटी ही मार्केट्स को भी ड्राइव कर रही है। Avinash, oil sector seems to be doing well. Do you think the fact that the government has made a decision to incentivize gas production and probably a collaboration of a kind between PSUs and the private companies, do you think that has had some effect on the oil sector? Yeah, I think clearly the gas companies, should benefit with this policy change by the government. And normally what we see is whenever crude prices rise, the gas companies, obviously benefit, because alternatively these fuels are then, used by end users. Overall, I would believe that, within the gas companies, something like a Indraprastha or a MGL could definitely benefit, from a longer term, point, considering that it's a clean fuel and the government is making all sorts of regulations and incentives to make this fuel popular. So I think you'll see a lot of activity on the gas space, but broadly it's going to be hurtful for the oil marketing companies, but positive for the upstream companies and obviously positive for the gas companies. अविनाश जी, हम आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम आपके साथ जारी रखेंगे। Invest in government bonds, a safe long-term investment. Invest through the NSE GoBid mobile app. Minimum investment of just ₹10,000. Download the app today. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। जैसा आप कह रहे थे कि भारतीय परिवेश में अभी अनसर्टेनिटी डेफिनेटली बनी रहेगी। इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस हैं, उनको लेकर, जैसा हर जनरल इलेक्शंस में होता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में देखें तो अभी आपको कैसी स्थिति दिखाई देती है? भारत और माफ कीजिएगा अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार वार्ता चल रही है, उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं? वो कैसे अफेक्ट करेंगे बाजारों को?
मुझे लग रहा है कि अभी जो माहौल है वो एक्सपेक्टेशन का है कि 1 मार्च की डेडलाइन के बाद कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन अमेरिका और चाइना के बीच में होने वाला है। इनफैक्ट ये बातें मार्केट्स में चल रही है कि चाइना खुद चाह रहा है कि जो टैरिफ का इश्यू है वहां पे कोई समझौता हो। तो मेरे ख्याल से जो फाइनल कमेंट्री 1 मार्च के बाद आएगी कि कैसे टैरिफ को हैंडल किया जाएगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट मेरे ख्याल से ऐसा मार्केट को अनुमान लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली कोई बड़ी टेंशन आएगी नहीं। तो ओवरऑल अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और चाइना में अगर कोई कंफर्टेबल ट्रूस होता है तो डेफिनेटली इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया को बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि वहां से कोई फिर वॉलेटिलिटी आने की अपेक्षा नहीं रहेगी। अविनाश जी, वैल्यूएशंस को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या सिचुएशन है? क्योंकि कहा जा रहा था कि भारत की जो वैल्यूएशंस है वो बहुत स्टीप हो गई हैं, बहुत महंगे हो गए हैं स्टॉक्स। अब जो ये करेक्शन आई है, मिड कैप स्मॉल कैप में भी जो करेक्शन आई है हाल में, आपको लगता है अब ये तीनों ही कैटेगरीज शायद इनकी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गई हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप? क्योंकि हम मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अब तेजी देख रहे हैं कुछ दिनों से। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट वैल्यूएशंस का जो सिनेरियो है वो हमको लग रहा है कि साल भर के पहले से अगर हम इसको कंपेयर करें तो डेफिनेटली काफी अट्रैक्टिव लेवल पे आया है, बोथ लार्ज कैप एज वेल एज मिड कैप एंड स्मॉल कैप काउंटर्स में। और इसकी एक वजह है कि मार्केट्स में अभी जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लिक्विडिटी कम होने के कारण वैल्यूएशंस कम हो चुके हैं। लिक्विडिटी इन शेयरों में स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप में कम हुई है। पर ओवरऑल अगर किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए तो निवेश का एक अच्छा मौका है। अगर कोई 1.5-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहे तो मेरे ख्याल से अच्छे क्वालिटी कंपनीज में ये काफी बेहतरीन मौका है, क्योंकि इलेक्शंस के बाद हमको लग रहा है कि थोड़ा बहुत मार्केट्स में डायरेक्शनल पॉजिटिव होगा। और ऑब्वियसली लॉन्गर टर्म में तो हम यही क्लाइंटों को सजेस्ट करते हैं कि खराब समय में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आपका बेनिफिट ज्यादा हो। Avinash, how do you see the banks performing? Because although the government has pumped in a lot of money into the bank sector, we now hold the dubious distinction of having the worst non-performing loan ratio among the world's major economies, having surpassed Italy. I think clearly PSU banks have become purely technical bets because on a fundamental basis, asset quality still continues. We have got banks which have got asset quality levels of more than 25 to 30%. Clearly, this is going to be a pain point for a long time, and whatever capital has been infused, even today, is just going to give a temporary respite to these PSU banks. So I would suggest that, investors should not bite into this news flow which has happened today. There could be a technical bounce tomorrow, but I think my advice is keep away from the PSU banks and look at some good quality, private sector banks. अविनाश जी, अगर हम FIIs को देखें तो वो भारतीय बाजार से उन्होंने निकासी करी है, अगर नेट हम देखें विड्रॉल किया है, लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के प्लान्स के द्वारा जो इन्वेस्ट करते हैं, उनका लगातार एक इनफ्लो बना हुआ है। क्या आप FIIs का आगे चलकर आप क्या रुख देखते हैं पूरे वर्ष 2019 में? और जो DIIs हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी कि वो कैसे चयन करें म्यूचुअल फंड्स का? नहीं, मुझे लग रहा है कि FIIs का रवैया तो मेरे ख्याल से हाल ही में 4-5 दिनों से पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन ओवरऑल अगर हम 2019 की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शंस खत्म होने के बाद सेकंड हाफ से आपको FIIs के फ्लोज इंक्रीजिंगली देखने को मिलेंगे। हालांकि ये बात क्लियर है कि जब भी फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट फ्लोज पे होता है, बट हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी रेट हाइक साइकिल फेड से एक्सपेक्टेशन रहेगी 2019 में। बट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो SIP के जो फ्लोज है वो भी हमको लग रहा है इलेक्शन के बाद ही वापस आएंगे। अभी तो थोड़ा बहुत स्लो डाउन हमने देखा है SIP के फ्लोज में, बट ओवरऑल सेकंड हाफ ऑफ 2019-20 में ही आपको ये फ्लोज का इम्पैक्ट पॉजिटिव दिखाई देगा। तब तक मेरे ख्याल से इसमें काफी वॉलेटिलिटी देखने की अपेक्षा रहेगी। इस आशा के साथ हम आपसे आप विदा लेना चाहेंगे और बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। श्रोताओं, ये थे अविनाश गोरक्षकर, बाजार विशेषज्ञ, जो बाजार के आज के चलन पर हमसे बातचीत कर रहे थे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मिस्टर भट्टाचार्य, आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है अभी जो बाजार है उसमें क्या आप आगे चलकर इलेक्शंस के बाद किस तरह का आप रवैया देखते हैं? सेंटिमेंट अंडरलाइंग अभी बाजार का पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखिए, इस वक्त बाजार मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत अनडिसाइडेड है, और इसीलिए हम जो बाजार में वॉलेटिलिटी की जो बात करते हैं वो हम देख रहे हैं। ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली जो स्टॉक मार्केट जो है वो एक निर्णायक नतीजा देखना चाहता है इलेक्शन से। तो अगर कोई निर्णायक नतीजा आता है
तो स्टॉक मार्केट का उछाल आएगा। अगर कोई निर्णायक नतीजा नहीं आता है तो उसमें थोड़ी बहुत घबराहट या वॉलेटिलिटी और भी बढ़ सकती है। पर पिछले कई दिनों में जो चीज हमने जो अभी हमने नजरअंदाज कर दी है वो है कि 2-3 ऐसे पॉलिसी डिसीजंस आए हैं, जैसे एंजल टैक्स का जो रेजोल्यूशन, वो मुझे लगता है स्टार्टअप्स के लिए, मुझे लगता है कि उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है मार्केट में। और FIIs का जो रिवाइव्ड इंटरेस्ट जो है, जो कल भी हमने देखा, जो पुल आउट है वो काफी कम हो गया है। वो पहले तो 2-3 दिन पहले तो 2000 करोड़ 3000 करोड़ का पुल आउट हो रहा था पर दिन, पर कल से और मुझे लग रहा है कि आज भी पुल आउट कम की में भी शायद पॉजिटिव भी आ गया होगा। मैं मानता हूं कि जो एंजल टैक्स का जो रेजोल्यूशन जो है वो उसके ऊपर, क्योंकि इसमें एंजल जो स्टार्टअप्स जो है उसमें काफी फॉरेन प्राइवेट इक्विटी फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, तो उसका है। और दूसरी बात यह है कि सरकार शायद इलेक्शन मोड में हो, पर तब भी काफी ऐसे डिसीजन लिया जा रहा है जिससे कि जो हमारी अर्थनीति की जो नींव जो है उसको सुदृढ़ करने की एक आशा दिख रहा है और एक डायरेक्शन साफ क्लियर हो रहा है। तो मार्केट मुझे लग रहा है कि वो भी उसको देख रहा है, उसीलिए मार्केट में अगर देखते हैं थोड़ी बहुत रिकवरी जो आई है उसका एक कारण हो सकता है। So this new bar that the government has set of 25 crore rupees regarding the angel tax, they say it has brought, it will bring benefit to about 90 to 95% of startups, and they had a bit of grouse. That's right, because if a startup company which is getting premium on its equity, then the tax man was penalizing that startup promoter, saying that you have made income. So that the principle of taxation was also being questioned, because when it is a capital transaction, when it is a capital infusion, why should you tax the capital? So there was this major principle that was being raised. So I think government has done a very deft footwork, I would say, by staying out of this controversy, by saying that the smaller ones, less than 25 crore, will be completely out of it, and the dispute or the assessment will be restricted to those who are above it. And this will also give a boost to the Make in India and the innovation program of the government. Innovation as a corollary to and a digital push and the new initiative. There was this major campaign of Startup India. So I think these are all interconnected, and is a positive sign to that. In fact, Mr. Bhattacharya, कल कैबिनेट ने काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं। न्यू इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी की अनाउंसमेंट करी है, जिससे 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी 2025 तक, $400 बिलियन टर्नओवर की बात कही है। कोल माइनिंग के जो वो थे कंडीशंस, उनको ईज आउट किया है। सोलर एनर्जी का जो वो है उत्पादन, उसको बढ़ाने की बातें कही हैं। तो आपको लगता है कि ये जो सारे हमारे पास बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जहां पर एक टारगेटेड प्रयासों की जरूरत है? देखिए, जरूर आपने ठीक कहा है। जो हमारी जो पॉलिसीज जो हैं, ये सारे पॉलिसीज को अगर आप देखें, एक जो कॉमन फैक्टर जो है इन सारे पॉलिसीज में, वो है कि जो पॉलिसीज ये नई नहीं हैं, इनके अंदर जो ग्लिचेस जो थी, जो कमियां थी या खामियां थी, उनको दूर करने की एक चेष्टा की गई है। और मुझे लगता है कि अगर इस कमियां को आप दूर करें तो शायद पॉलिसी की जो एक इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर, वो अच्छा होगा, बेहतर होगा। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया। छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। जैसा आप अभी कह रहे थे मिस्टर भट्टाचार्य की पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हमेशा एक ऑन गोइंग प्रोसेस रहता है। उसी संदर्भ में जीएसटी की 33वीं मीटिंग आज हो रही है। उसमें रियल एस्टेट को लेकर कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने हैं। वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या है वो डिसीजंस और कैसे वो इकोनॉमी को बूस्ट देंगे? देखिए, जीएसटी का जो डिसीजन जो है उसमें एक बहुत बड़ा एक स्टेप लेने की एक प्रपोजल है कि जो
बिल्डिंग जब बनती है, उस बिल्डिंग में अगर मान लीजिए आप अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो उस बिल्डिंग को आप उसको अगर सेल करना चाहते हैं तो उसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पर जो बिल्डिंग आइदर अंडर कंस्ट्रक्शन है या जिसमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिली हुई है, उसको एक 5% फ्लैट रेट में जीएसटी देने की प्रपोजल है। और अगर अफोर्डेबल हाउस है तो उसमें 3% की है। पर एक जो डाउट जो आ रहा है वो है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा प्रपोजल है, उसके ऊपर काफी चर्चा होगी, काफी डिबेट होगी, तर्क होगा, वितर्क होगा, क्योंकि जीएसटी का जो मूल मंत्र है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे रेस्टोरेंट सेक्टर में उठा लिया गया है 5% देकर, अगर रियल एस्टेट सेक्टर में भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का अगर आप उठा लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, तो जीएसटी का जो एक जो स्पिरिट जो है उसमें थोड़ा धक्का आ सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज की बैठक में इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। कि ये डिसीजन तभी लेंगे जब एक और भी पूरी तरह से एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या काफी स्टेट लेवल मिनिस्टर्स से बातचीत करने के बाद ही ये डिसीजन लेंगे। आइए रुक करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता फिर शुरू होने के बाद एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा। व्यापार वार्ता के अलावा निवेशक अमरीकी फेडरल रिजर्व के ब्यौरे के इंतजार में भी थे, ताकि नीतिविदों के ब्याज दरों को लेकर और बैलेंस शीट में कटौती को लेकर रुझान पर संकेत मिल सके। जापान के निक्केई सूचकांक और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स प्रत्येक में 0.6% की बढ़त दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग 1% से अधिक के उछाल में रहे। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.2% की बढ़त दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी तेजी का रुख था। लंदन का फुटसी और फ्रांस का कैक प्रत्येक 0.2% की बढ़त पर थे। जर्मनी के डैक्स में 0.3% की तेजी चल रही थी। A look at the U.S. market now. U.S. stocks today gained modestly as upbeat results from Walmart boosted investor sentiment and high-level U.S.-China trade talks resumed. S&P 500 and Nasdaq Composite Index both gained 0.2%, and the Dow Jones Industrial Average remained almost flat but ended in green. Mr. Bhattacharya, how do we see the U.S. economy? We say that it's doing well, and yet we say that it's slowing down. Is there a bit of a dichotomy there? And of course, so much riding on the U.S.-China trade talks. Oh, absolutely. I think the markets are looking forward to the 1st of March resolution of the U.S.-China dialogue. And if the resolution is positive, then I think the market may see an uptick. But I will try to focus on why the markets, saw modest gains. And there is a reference to the Walmart's results. And Walmart's results are dependent to some extent now on what is happening in India, because Walmart is now the owner of Flipkart in India. And the Walmart guidance given in the Walmart's result shows that they are in a position to tackle the policy uncertainty that is surrounding Flipkart in India right now, that whether they can continue to sell products in which, from companies, vendors in which they have stake. So my sense is that what is happening in the US market, after all it is a global economy, also tells us about what is likely to happen in the Indian policy space, because Walmart would not have been relatively bullish, boosting investor sentiment there, without having some game plan of what they want to do with regard to the e-commerce activities in India. And as we know, they spent $16 billion to acquire Flipkart. So what they are telling the U.S. market regulator is an indication of what might happen in the Indian policy space. And we'll have to see, because the government also brought out some regulations on e-commerce, which many products are off the list now. Off the list, that's right. So we'll have to wait and watch. ये चले करेंसी बाजार की ओर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 24 पैसे मजबूत होकर $71.12 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इससे पिछले सत्र में रुपया 13 पैसे की गिरावट से $71.36 प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ था। यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स में यूएस ने कहा है कि चाइना को युआन का डिवैल्यूएशन नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक ये बहुत बड़ी शर्त रखी है। सो करेंसी की जो डिवैल्यूएशन, क्या हम पर भी ये इल्जाम लगाया है कभी यूएस ने? अभी तक तो नहीं लगाया है, पर मैं ये मानता हूं कि ट्रेड टॉक्स में
जो कोई ट्रेड वॉर की जो सिनेरियो आती है, डर ये होता है कि जो ट्रेड वॉर करेंसी वॉर में किस तरह से बदल जाती है। क्योंकि ट्रेड वॉर अगर करते हैं आप, अगर आप टैरिफ लगाते हैं या टैरिफ कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, टेंडेंसी ये होता है कि अफेक्टेड पार्टी करेंसी का अवमूल्यन इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस डायलॉग में जिसके आपने जिक्र की, कि इसका साफ जाहिर है कि यूएस नहीं चाहता है कि ट्रेड डायलॉग में अगर कोई करेंसी का कोई दुरुपयोग या उपयोग कोई ना करे। तो अभी तक तो भारत के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, पर अगर इम्पैक्ट आएगा तो मैं मानता हूं कि हमारे इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं होगा। As they say, the coming years you may see less of the war with ammunition, but more through trade and economy. Absolutely. Well, we have a story on the Brexit. British Prime Minister Theresa May will meet top EU official Jean-Claude Juncker in Brussels tomorrow, pressing on with efforts to find a way to get their Brexit deal through Britain's Parliament. Theresa May's spokesman said the meeting is a significant part of a process of engagement with the EU. The European Union today warned British Prime Minister that her trip to EU headquarters to seek an elusive breakthrough in Brexit negotiations stands no chance of success when it comes to her central demand for the divorce deal to be reopened. EU Commission President Juncker made it clear that he had little hope that something fruitful would emerge during his talks with May tomorrow. He further said that the stalemate between Britain and the 27 other EU nations is likely to continue. A brief comment on this. Well, I think it's not good news because we are probably hurtling towards a no-deal Brexit, which means that Brexit will happen without any deal in place. So I think it's not good news, and particularly because Mr. Juncker is saying that there is no likelihood of any reopening of talks on Brexit. Well, crude oil futures today eased in light of the prospect of a continued boom in U.S. shale oil output. Although with OPEC determined to restrict its own production to prevent a global surplus of unused fuel, the price held just shy of 2019 highs. Brent crude prices were trading around $66 per barrel, while WTI prices were at around $55.80 per barrel when reports last came in. चले सराफा बाजार। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 210 रुपए कम होकर 34,470 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। आभूषण निर्माताओं की मांग कम रहने से सोने में ये मंदी आई। हालांकि औद्योगिक इकाइयों और सिक्के बनाने वालों में चांदी की मांग बढ़ जाने से चांदी 450 रुपए के उछाल से 41,800 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क के बाजार में सोने का मूल्य मामूली बढ़कर $1,341.48 प्रति आउंस दर्ज हुआ। चांदी का मूल्य भी बढ़कर $16 प्रति आउंस पर पहुंच गया। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आप आए मिस्टर भट्टाचार्य, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Now the headlines again. Domestic stocks bounce back with a gain of more than 1%. Sensex closes above 35,500 level. Nifty ends at 10,735. Rupee appreciates 24 paise against the US dollar, and Brent crude prices ease to trade around $66 per barrel. That's all we have for you in this edition of Market Mantra. On behalf of myself, Lalima Neja Dang, and Sonu Sood, it's goodbye. Market Mantra. Market Mantra.